वेलकम बैक नाजरीन, शो देखने का शुक्रिया, पार्टिसिपेशन का शुक्रिया। ज़रा आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि स्क्रीन पे आपके 1-800 नंबर आ रहा होगा नूर वाइटामिन्स का। इनके वाइटामिन जो हलाल और 100% खालिस हैं। इनसे रब्ता कीजिए और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ऑर्डर कीजिए। ये आपको फ्री शिपिंग भी देंगे और गिफ्ट भी भेजेंगे और डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं इनकी। बाकी बाज़ार से जो वाइटामिन मिलते हैं उनके मुकाबले में रिलेटिवली 1/3 1/4 कम कीमत है इनकी। और कीमत सबसे कम बड़ी है। बात यह कि ये हलाल सॉरी, कंपोनेंट के हैं। मैं आपको कर रही हूँ, आई एम सॉरी इंटरप्ट। मैंने खुद टेस्ट करके देखा, इसके अंदर फिश का एक होती है ना, जब वाइटामिन कोई लें तो कहते हैं कि बहुत बड़ा कैप्सूल है या स्मेल आ रही होती है। इसके अंदर स्मेल कोई नहीं है। खासतौर पे जो प्रीनेटल वाइटामिन हैं वो औरतों को बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव हुई होती हैं स्मेल के लिए। तो इनका आप जब ऑर्डर करें तो ZNZ वो कोड, प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा, उससे आपको फ्री शिपिंग मिलेगी जी। और दूसरा हमारे स्पॉन्सर जो है लैब यूएसए है। लैब यूएसए क्लिनिकल लैबोरेटरी है बॉस्टन के पास हेवर हिल में। फ़ारूक आफरीदी साहब इसके मालिक हैं, वो चलाते हैं लैब। मेरी अपने डॉक्टर हजरात जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे इस्तदा है कि वो अगर इनकी लैब से सर्विसेज हासिल करना चाहें तो वेबसाइट भी है इनकी और 1-800 नंबर भी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। इनसे रब्ता कीजिए, ये आपको बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो नाजरीन, यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर है, मैं कॉल ले लूँ और उसके बाद हम आज थोड़ी सी बात रूहानियत के हवाले से करेंगे डॉक्टर साहब से। जी वेलकम टू द शो, फरमाइए। जी हमारे कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप कर। Oh yeah, I have a question. Sure. Go ahead. Okay, assalamualaikum. Alaikum. My mom, she gets a lot of heart pain, and she gets it throughout her left arm. We actually went to the emergency room and we spoke to a lot of doctors, and nobody knows what's wrong with her. So did they do a angiogram or they did any testing on her? They did put this thing on her finger, and I don't remember exactly what it is. No, that is just a blood oxygen level. She still gets a lot of pain. Okay. Maybe you, Dr. Saab, aap bataye. We'll have a doctor to answer your question. Maybe Dr. Saab, you can answer it in English so that our viewer can understand it more clearly. Sure. And suggest that what she should do, follow up with her cardiologist and whatnot. I think she had the initial workup in the ER and they sent her back home, so they didn't do anything else. So the question will be a little bit hard to answer without really knowing exactly what they did for your mother. I mean, I'd like to know, I mean, if they did a stress test or a echocardiogram or... It was a test showing her heartbeat, I think. I'm sorry? Heartbeat And they only, said EKG. they said her heartbeat is normal. Yeah. Okay, so that, I mean, so then she really needs to start. Again, you know, when you have chest pain, the most important part that you need to care for or address within the chest is the heart. So that's where you start. And I think that, I mean, you know, without really knowing your mother's history and risk factors and so forth, just a general answer from a cardiologist to you would be that she needs to, you know, see her family doctor and get a cardiology referral and begin with just a simple stress test perhaps. Okay. But it depends, you know, I mean, I don't want to give a recommendation without really knowing the patient well, because if she has what we consider unstable angina, you know, then she may actually need a heart catheterization directly. So again, it's a little tough for me to answer this question really without knowing. I would assume that if you went to an emergency room, they must have done at least some kind of screening workup to make sure that this is not unstable angina, because unstable angina actually requires hospitalization and urgent cardiac catheterization and But I think she did the right thing taking yeah. her mother to ER, because the first thing you need to do if somebody is complaining of chest pain, you need to take them to the ER and not just self-diagnose or do something. And from here onward, the best option would be to go to family doctor and get referral to a cardiologist and get proper workup. Don't assume that she has heart pain or heartache. Like some women, especially, they are so prone to have panic attacks and anxiety attacks, and there's so many other things which you cannot ignore, and especially in women, they can be just some kind of panic attacks. That thing. Right. It could be anything, but I It mean, could be you anything. start There out can with be the million heart, diagnoses. and then if you, you know, and then you eliminate. So you're on you a know, right track. You need to go and see your primary care and then get her evaluated and just go from there. I think you're on the right track. We have one more caller जी, फरजाना है ह्यूस्टन से हमारे साथ। फरजाना, वेलकम टू द शो, फरमाइए। जी फरजाना। Hello.
हेलो मेडिसिन ले रही हूँ मगर स्टिल मेरे बॉडी में पेन और मैं टाइट हो जाती हूँ, तो ये मेडिसिन के अलावा अगर और कोई मतलब दवाई या कोई ऐसा इलाज नहीं है इसका? आप फरजाना, दोबारा आपका से बात question। कीजिए, आपकी बात आधी कट गई थी, दोबारा बोलिए। जी मुझे थायराइड प्रॉब्लम है। हाँ। मैं 7 साल से मेडिसिन पर हूँ, लेकिन मेडिसिन के साथ भी मैं जो बॉडी पॉन दर्द होता रहता है मेरी बॉडी में, और मैं चाह रही हूँ कि इसके अलावा भी कोई अगर हो ना ट्रीटमेंट तो मतलब विदाउट मेडिसिन। जी, आप एक्सरसाइज वगैरह करती हैं रेगुलरली? जी हाँ, एक्सरसाइज करती हूँ, वॉक करती हूँ, मगर मैं फौरन टाइट हो जाती हूँ, और मेरा ब्लड प्रेशर भी सही है, मेरा कोलेस्ट्रॉल भी, एवरीथिंग ओके। टाइट हो जाती हूँ। टायर्ड हो जाते हैं आप। देखिए फरजाना, आपका जो थायराइड का जो लेवल दोबारा आखिरी दफ़ा लैब टेस्ट कब करवाया था आपने? मैंने करवाया था। 100 की मैं टेबलेट लेती हूँ, हाइपोथायराइड है। अच्छा, 100 माइक्रोग्राम की आप ले रही हैं और हाइपोथायराइड के लिए, तो वो टेस्ट रिजल्ट्स आपके TSH लेवल वगैरह नॉर्मल आए थे? जी जी। अच्छा, तो आपके डॉक्टर साहब आप बताइए इनको क्या करना चाहिए? आपने डॉक्टर के पास दोबारा जाएं, क्या करें? उनको थकावट बहुत हो जाती है, एक्सरसाइज भी करती हैं, थायराइड डॉक्टर की के पास गोली ले दोबारा रही हैं। जाइए। और अगर आपका डॉक्टर अगर आपको मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास भेजता है तो जो है मैं उसका हार्ट वर्कअप ज़रूर करूँगा, क्योंकि जो है ये एक पहले भी शुरू में बात हुई थी कि जो है ख़वातीन की अलामात हार्ट की कुछ मर्दों की निस्बत डिफरेंट होती हैं कई ख़वातीन के अंदर। तो जो है कई ख़वातीन के अंदर जो है अलामत सिर्फ शायद वीकनेस की भी हो या टायर्डनेस की हो। तो अगेन मैं जो है सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, एक कार्डियोलॉजी की पर्सपेक्टिव से। तो जो है इस वजह से मेरा ख्याल है कि आपको चाहिए ये कि आप अपने जो मेडिकल डॉक्टर हैं प्राइमरी केयर उनसे रुजू करें। अगर वो समझते हैं कि जो है आपको कार्डियोलॉजिस्ट को देखना चाहिए, तो जब आप कार्डियोलॉजिस्ट को देखने जाएंगी तो फिर आपके जो है हार्ट टेस्ट जो हैं वो होंगे। वो अनीमिया वगैरह भी फटीग के अलामात होते हैं। right, अनीमिया आपका आयरन लेवल कम हो, थायराइड आपका ऑलरेडी कंट्रोल्ड है। अनीमिया के अलावा जो होता है आपका कोई फटीग सिंड्रोम, ऑटो इम्यून, जिस तरह डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया था, ये सारा डायग्नोसिस होगा तो अगले कोई काम होंगे। लेकिन चूंकि हार्ट वो कह रहे हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक सर्टेन एज के बाद उसकी टेस्टिंग वैसे ही शुरू हो जानी चाहिए। तो दैट्स योर आंसर। स्पेशली अगर रिस्क फैक्टर। ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। मैं एक और कॉल ले लूँ जी। हमारे साथ हैं शाजिया फ्रॉम न्यूयॉर्क जी। शाजिया, वेलकम टू द शो जी। जी शाजिया, वेलकम टू द शो। जी शाजिया, आप हमसे बात कर रही थी। जी शाजिया की कॉल मेरा ख्याल है कट गई है। जी फरमाइए शाजिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकती हूँ? जी फरमाइए जी डॉक्टर साहब। आप जी मेरी एज 40 अभी दिसंबर में 40 हुई है, और मुझे प्रॉब्लम था पिट्यूटरी ग्लैंड। जी हाँ। और उसके बाद मैंने यहाँ काफी मेडिसिन लिया और वो तो ठीक हो गया प्रॉब्लम, लेकिन मुझे थर्स्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया, उसका साइड इफेक्ट। किसका जी? थर्स्ट की? थर्स्ट, अच्छा अच्छा जी। थर्स्ट की प्रॉब्लम जी, जी, मैं जी। बहुत बस पीती बहुत हूँ, पानी बहुत ज्यादा, हर वक्त बस मैं सिर्फ पीने का प्रॉब्लम मुझे हो गया, थर्स्ट की प्रॉब्लम जी ठीक है जी। तो ये तो जो है जो आप बात कह रही हैं ये एक्चुअली पिट्यूटरी रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है कि जिसको ये डायबिटीज़ इंसिपिडिस हम बोलते हैं। वैसे वो एक्चुअली डायबिटीज़ नहीं है, वो मतलब उस तरह का डायबिटीज़ नहीं है शुगर वाला। तो जो है ये आपको मेरा ख्याल है पहले अगर आपने जो कि पिट्यूटरी का नाम लिया है साथ में, और साथ आप कह रही हैं ये प्यास की प्रॉब्लम, तो ये तो आपके जो है इंटरनल जो मेडिसिन के जो स्पेशलिस्ट हैं या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं उनसे आप पहले रब्ता कीजिए। वैसे जो है जो एक्चुअल शुगर डायबिटीज़ है वो भी प्यास क्रिएट कर सकती है। जी नहीं, वो सब टेस्ट करवाया मैंने, वो ठीक है मेरा। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड अभी फिर आपको पूरा कंट्रोल नहीं है अगर आपको जो है अगर प्यास की इस तरह से प्रॉब्लम वो आ भी रही है। मुझे डॉक्टर ने सारा चेक करके मुझे बता दिया है। अब मुझे सिर्फ जो वो कहते हैं कि उसका स्टीरॉइड जो मैंने दवाइयाँ खाई हैं उसका मुझे साइड इफेक्ट हुआ है। हाँ, ये हो सकता है अगर साइड आपके इफेक्ट हुआ है तो वो तो फिर खत्म हो जाएगा ना जब मेडिसिन खत्म करेंगी। जी अगर साइड इफेक्ट जो है वो मेडिसिन के साथ फिर खत्म हो जाएगा। अगर उनका ये ख्याल है कि स्टीरॉइड की वजह से है तो जो आप अपने मेडिसिन तो खत्म हो गए हैं, बहुत अरसा हो गया, लेकिन ये प्यास का मसला नहीं खत्म हुआ। आप अपना जो है साथ में फ्लूइड रिटेन भी कर रही हैं क्या आप? यानी जो प्यास लगती है तो क्या जो है बॉडी में स्वेलिंग भी आ रही है या आपको नहीं? बार बार जाना पड़ता है, बाथरूम जाना होता है? प्रॉब्लम नहीं है, बस ये मुझे काफी अरसे से यानी कि आपको कोई वो जो है स्वेलिंग नहीं है पैरों में या हाथों में या कोई इस बस तरह? वैसे मेरे पैरों में टांगों में दर्द बहुत होता है, थक जाती हूँ लाइक। जी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास हाँ, जाना ये मेरा चाहिए। ख्याल है इस तरह से एंडोक्रिनोलॉजिस्ट फोन पे- रिलेटेड प्रॉब्लम। आपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो हार्मोन्स के डॉक्टर हैं उनसे रब्ता कीजिए। अनम है जी हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर। हमारे पास सिर्फ आखिरी 3-4 मिनट रह गए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सारी कॉलें ले लूँ। अनम जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا, میری بہن ہے جس کی ایج ہے تقریباً 42 ایئرس اولڈ, اس کو پچھلے سال سے اب تک تھائرائیڈ کی پرابلم ہو گئی ہے, لیکن اس کے آنکھوں کے نیچے بہت ساری سوجن ہوتے ہیں, کیا تھائرائیڈ میں یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. یہ جو ہے یہ پیریاربٹل ایڈیما میرا خیال ہے کہ جو ان کو ہائپر تھائرائڈ ہوں گی میرے خیال سے, اور یہ جو ہے یہ ٹربل کئی دفعہ جو ہے نا یہ پرابلم ٹریٹ کرنا جو ہے بھی مشکل ہوتا ہے. تو جو اب مجھے پوری ہسٹری تو آپ نے نہیں بتائی, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تھائرائڈ ریلیٹڈ ایکس آف تھلمس جسے ہم کہتے ہیں, تو وہ کئی دفعہ ویسے گولیاں لیتی ہے, وہ 3 ٹائم گولی لیتی ہے, لیکن وہ میری سسٹر پاکستان میں ہے, گولیاں 3 ٹائم لیتی ہے, تو ڈاکٹر کو دکھاتی ہے تو انہوں نے یہی بولا کہ 3 ٹائم گولی لینا. اس کی آنکھوں کے نیچے کافی سوجن ہوتا ہے. آنکھوں کے نیچے سوجن ہوتا ہے یا کہ آنکھ کا جو ہے وہ جسے اچھا نیچے آنکھوں کے نیچے سویلنگ بہت ہوتی ہے آنکھوں کے نیچے, یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ باہر نہیں آ رہا. بہت ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کی انم کال کاٹ رہا ہوں, میں بہت معذرت خواہ ہوں. انم کو آپ بتا دیں کہ وہ جو لیولز ہیں وہ مینٹین کرنا ضروری ہے, باقی اس طرح سے نہیں جواب دے سکتے نا ڈاکٹر صاحب آپ کا, کیونکہ ہسٹری ہمیں پتہ نہیں ہے, یا پکچر لے کر آپ ہمیں بھیجیں اسکین کر کے. یہ پکچر جو ہے وہ میرے خیال ہے مفید ہوگی اگر آپ جو ہے آپ ہمارے کنٹرول روم پہ اپنا نمبر لکھوا دیجیے. میں معذرت خواہ ہوں تمام کالر سے جن کی کالیں آج نہ لے سکے یا کاٹنی پڑی. ہم دوبارہ, اور ہمارے کارڈیالوجسٹ ہیں ڈاکٹر صاحب کو بھی دوبارہ تکلیف دیں گے, آئیں اور آپ کے سوالوں کا جواب دیں. اور ڈاکٹر صاحب تو ہمارا شو ختم ہو رہا ہے جی تقریباً ختم ہو گیا. ہم نے سوچا کہ شاید 4 کالز اور لے سکتے ہیں, لیکن ٹائم تو اتنی جلدی گزر جاتا ہے, آدھے جواب دے سکتے ہیں آدھے نہیں دے سکتے. لیکن بہت معذرت کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جن کے نہیں دے سکے وہ پلیز ہمیں اگلی دفعہ یاد رکھیے. اگلی دفعہ جب ہم ایوری سنڈے 2 o'clock آتے ہیں تو جتنے بھی کالرز ہیں ہمارے واپس آئیں, ان کا جواب دینے کی کوشش ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ اتنی دور سے تشریف لائے. ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے بہت مزید مشورے دیے مفید, بہت شکریہ, اور آپ سے روحانیت کی بات کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ بلانے کا, بہت مزہ آیا. ناظرین اجازت, خدا حافظ.